Good morning, students, and welcome to the class. We are doing the chapter Parties and Party System in India, and under this chapter, as we have discussed about it, that two chapters are merged. The first chapter, which is the era of one party dominance, which deals with the period of the first three elections from 1947 to 1962. That is with the first the chapter era of one party dominance, in which we see the dominance of Congress was there. And now after that, this fifth chapter, which is originally fifth chapter in your textbook, the name of the chapter is Challenges to and Restoration of the Congress System. This is also there, and in this chapter we will discuss about we have started our discussion, and in this chapter we will be discussing about the election of 1967. What happened, what was the result, what was the context, what was the result of this election of 1967, then presidential election of 1969, which caused this division in the Congress, and then we will also discuss the result, the election of the 1971 election. So this is all. We have started our discussion about this chapter. Like, first of all, the death of Nehru, and then the transfer of power, peaceful transfer of power was done. Lal Bahadur Shastri became the prime minister, and then he faced two challenges. The first was food crisis, and the second was Indo-Pakistan War of 1965, and then his death in Tashkent, and then again this transfer of power taken place peacefully. Though the members of the Congress Parliamentary Party has to go for election, but still it was completely peaceful. The competition was between Morarji Desai and Indira Gandhi, and Indira Gandhi became won she got more than 2/3 of the votes, and there was some reason, as we have discussed in the previous class, that the senior leaders were of the opinion that Indira Gandhi is inexperienced leader. She is not having any kind of political and administrative experience. So what we find that it was less than a year when after coming to power, after becoming the prime minister, Indira Gandhi has to face the election, because 1967 के फरवरी में इलेक्शन हो जाते हैं. तो इलेक्शन ये जो हुआ 1967 का, जो कि फोर्थ इलेक्शन था, इस समय तक दोनों साथ होते थे, जनरल इलेक्शन भी और स्टेट इलेक्शन भी. तो ये जो इलेक्शन था, इसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो कल हमने डिस्कस किया. किस सर्कमस्टांस में इलेक्शन हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन कि एक तो इतना प्रॉब्लम्स आया, दो लीडर्स की डेथ हो जाती है, दो प्राइम मिनिस्टर की डेथ होती है, और जो नया प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, सी इज़ कंसिडर्ड टू बी इनएक्सपीरियंस्ड. हालांकि बाद में ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही गलत प्रूफ हुई, जो इंदिरा गांधी के बारे में जो सोचा गया था. तो अभी तो यही समझ में आ रहा था कि जिसको किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, वो बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर, और एक साल के अंदर अंदर ही उनको इलेक्शन फेस करना पड़ा. और जो कंट्री की सिचुएशन थी वो बहुत ही बुरी थी, इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रहा था. जो वॉर हुआ था, अटैक हुआ था चाइना का, उसका इम्पैक्ट अभी तक था. मानसून फेलियर हो गया था, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो था वो कम हो गया था, और फूड ग्रेन्स हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा था, फॉरेन एक्सचेंज हमारा कम हो गया था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कमी आ गई थी, एक्सपोर्ट्स में कमी आ गई थी, और जो हमारा फोकस था एक्सपेंडिचर का, दैट वाज शिफ्टेड टू मिलिट्री एक्सपेंडिचर, क्योंकि हमारी जो तैयारियां थी वो बहुत अच्छी नहीं थी. 1962 का वॉर ने इसको प्रूव कर दिया था. तो ये प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे, और उस पर से यूएस का प्रेशर हम पे बहुत ज़्यादा आ रहा था, बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स वी वर फेसिंग, एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर ऑफ यूएस, डिवैल्यूएशन वॉज डन बाई इंदिरा गांधी. अपनी करेंसी के प्राइस को घटाया गया.
जिसके कारण एक कहा जाएगा कि माहौल ख़राब हो गया। और इन सब की वजह से अल्टीमेट जो इम्पैक्ट हुआ वो ये हुआ कि प्राइस राइज हो गया एसेंशियल कमोडिटीज़ का, एंड दिस प्राइस राइज लेड टू द डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट वॉज ऑन राइज, फूड स्कैरसिटी वॉज देयर, poverty was there, so all these situations were becoming highly uncontrollable, and then people started doing this hartal and strike and bunds. So the attitude of the government was that these are the problems of law and order. The government was not ready to accept the problems of the people. So this was the situation, and then one more thing was there. जो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जो थी, एक तो ऐसे ही हमने देखा था कि किस तरह से सीपीआई से एक नया ग्रुप बनता है सीपीआई-एम प्रीवियस चैप्टर में, और सीपीआई-एम से फिर एक इसी समय में एक नया ग्रुप बन जाता है सीपीआई-एमएल, जिसको जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट। दिस ग्रुप, दिस पॉलिटिकल पार्टी बिलीव्ड इन वायलेंस, आर्म्ड एग्रेरियन प्रोटेस्ट में वो बिलीव करते थे, और इसको उन्होंने लीड किया। तो ये सिचुएशन प्रिवेल कर रही थी। इसी के समय इस तरह के सिचुएशन में अपोजिशन भी बहुत एक्टिव हो गई, क्योंकि अपोजिशन को एक तो ऐसा माहौल मिला, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है लोगों की, तो लोगों को मोबिलाइज करना बहुत आसान था, ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान था, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाने लगे। साथ ही साथ उनको ये भी समझ में आ रहा था कि एक नया लीडर कांग्रेस का अभी प्राइम मिनिस्टर है, नेहरू इज़ नो मोर, तो नेहरू के बाद जो कांग्रेस है उसको हम हरा सकते हैं अगर हम सब एक हो जाएं, जो भी अपोजिशन वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस के अपोजिशन में जितने वोट पड़ते हैं अगर वो डिवाइडेड नहीं होंगे तो हम कांग्रेस को पावर से रिमूव कर सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय राम मनोहर लोहिया, सोशलिस्ट थिंकर, एंड दिस इज नोन एज नॉन कांग्रेसिज्म। हमने यहाँ तक कर लिया था, है ना, ये हमने आपको रिकैपिचुलेट कराया। और उसके बाद इन दिस सर्कमस्टांस दिस fourth election held, and as we have discussed about this also, जो इलेक्शन का रिजल्ट था वो बहुत ही चौंकाने वाला था, क्योंकि हालांकि कांग्रेस वाज एबल टू गेट मेजॉरिटी इन द लोकसभा, बट जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे कांग्रेस के कैबिनेट में, जो लीडर्स थे वो हार गए थे, जैसे के कामराज हार गए, अतुल्य घोष हार गए, के बी सहाय हार गए। और इसके बाद अगर हम स्टेट्स की कंडीशन देखें तो स्टेट्स में और भी कंडीशन ख़राब हो गई थी कांग्रेस की। 7 स्टेट्स में कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिली, बाकी के 2 स्टेट्स में कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ डिफेक्शन। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने तमिलनाडु को भी डिस्कस किया था कि तमिलनाडु वॉज द ओनली स्टेट वेयर अ रीजनल पार्टी, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, was able to form the government on its own. It did not need any kind of support from anybody. It got majority and it formed the government. So this is very important. अब हम देखते हैं कि स्टेट्स में क्या हुआ, जो इलेक्शंस थे उसमें क्या हुआ। 1967 का जो इलेक्शन था उसने ही सबसे पहले कोalition के फेनोमेना को सामने लाया, ठीक है। तो जो कोalition की स्टार्टिंग हो रही है वो कब से हो रही है? कोalition in Indian politics started with the result of 1967 state election। 1967 में जो स्टेट्स का इलेक्शन होता है उसके जो रिजल्ट होते हैं उसकी वजह से कोalition का फॉर्मेशन पहली बार इंडिया में स्टार्ट होता है एट द स्टेट लेवल, नॉट एट द सेंट्रल लेवल। सेंट्रल लेवल में कांग्रेस वाज एबल टू win the majority, Congress was able to form the government on its own, but states में, बहुत सारे states में इस तरह की कंडीशन होती है जहाँ पे कोalition गवर्नमेंट फॉर्म होता है। और कई ऐसे स्टेट्स थे जहाँ पर एक भी पार्टी, सिंगल पार्टी जो है मेजॉरिटी नहीं विन कर पाती है, और बहुत सारे जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थे वो आपस में आ जाती हैं, है ना, और आपस में मिल जाते हैं। और इस तरह की जो नॉन कांग्रेस पार्टी जो आपस में मिल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं दे वर कॉल्ड संयुक्त विधायक दल, SVD, संयुक्त विधायक दल।
SVD, है ना। ये SVD क्या हुआ, दिस इज कोलिशन। ये जो कोलिशन है यही है SVD, जिसमें कि नॉन कांग्रेस पार्टी, ये जो कोलिशन था दैट वाज द कोलिशन ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टी इन द स्टेट्स, ठीक है। और ये जो गवर्नमेंट्स थे इनको हम SVD गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट। तो ज़्यादातर केसेस में जो कोलिशन पार्टीज थे, जो SVD में जो पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हिस्सा थे, उनकी आइडियोलॉजी एक दूसरे से नहीं मिलती थी, है ना। दे वर आइडियोलॉजिकली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। एंड लाइक अगर हम बिहार में देखें तो SVD गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई उसमें हम देखते हैं कि दो सोशलिस्ट पार्टीज थी, जैसे SSP और PSP, दे बोथ वर सोशलिस्ट पार्टी with the CPI on the left and जनसंघ on the right। तो सोशलिस्ट पार्टी और CPI तो फिर भी चल सकते हैं साथ में, लेकिन इनके साथ जो कोलिशन है वो जनसंघ का भी कोलिशन है। तो ये क्या है, जनसंघ राइटिस्ट है, CPI लेफ्टिस्ट है, सोशलिस्ट भी लेफ्टिस्ट ही होते हैं। तो ये राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट अगर एक साथ मिलकर कोलिशन फॉर्म करेंगे तो यू कैन बेटर अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। फ्यूचर बहुत लंबा नहीं चला ये इस तरह का गवर्नमेंट। यही कंडीशन पंजाब में थी। पंजाब में जो गवर्नमेंट बनी इस तरह की कोलिशन वाली, उसको यूनाइटेड पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कहा गया, PUF, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है। और इसमें दो राइवल जो अकाली पार्टीज थे, अकाली दल एक मेन पार्टी थी, उसकी बहुत सारी ब्रांचिंग हो गई थी इस समय तक। तो दो राइवल पार्टीज जो थी अकाली दल के, एक संत ग्रुप था और एक मास्टर ग्रुप था, ये दोनों साथ में थे। They were rivals, but they were together in this popular united front in order to form the government. The only thing was they have lust for power. Other than this, we cannot describe it in any other way. They just wanted to keep Congress out of the power. They wanted to grab the power, and that is the reason they were ideologically rival to each other. Still, they were in the coalition. सिमिलरली उसी तरह उसमें और भी ग्रुप्स आ जाते हैं, लाइक कम्युनिस्ट पार्टीज के भी जो थे, CPI भी है, CPIM भी है, SSP थी, रिपब्लिकन पार्टी है, भारतीय जनसंघ, मतलब दे ऑल वर, अगर हम साथ में आ रहे हैं तो कुछ तो हमें हमारे बीच में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। बट ऐसा कुछ भी नहीं था जो स्टेट्स में कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, संयुक्त विधायक दल जो फॉर्म हुए थे। और यही वो समय है 1967 का जो इलेक्शन है, स्टेट इलेक्शन जो है, ये बहुत ही प्रोमिनेंट है, क्योंकि इसी समय से बहुत सारी नई चीज़ें स्टार्ट होती हैं। डिफेक्शन की भी जो स्टार्टिंग होती है वो इसी समय से होती है। इसके पहले इंडियन पॉलिटिक्स में डिफेक्शन का कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं था, लेकिन इस इलेक्शन में हम देखते हैं कि डिफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जैसे किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट में एक पार्टी जो है वो कोई भी पार्टी मेजॉरिटी विन नहीं कर पाई, बट कोई ना कोई पार्टी, लार्जेस्ट पार्टी तो होगी। अब जो लार्जेस्ट पार्टी है वो क्या चाहेगी कि दूसरी जो पार्टीज हैं उनसे अगर उसे कुछ MPs टूट के उसके पास आ जाते हैं तो वो क्या हो गए, वो गवर्नमेंट फॉर्म कर सकती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है, इस तरह के एफर्ट्स बहुत ज़्यादा हुए और डिफेक्शन बहुत ज़्यादा हुआ। हम जीते हैं इलेक्शन किसी भी पार्टी, और मान लीजिए हमने जीता भारतीय जनसंघ पार्टी के टिकट पे इलेक्शन को, और इलेक्शन के बाद हमें पता चल रहा है कि हम, या फिर आप हम ये एग्जांपल समझिए, हमने कांग्रेस पार्टी के टिकट पे इलेक्शन जीता, ठीक है। आई वॉज अ कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस पार्टी, आई कंटेस्टेड द इलेक्शन फ्रॉम पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, आई वन द इलेक्शन एज कांग्रेस कैंडिडेट। अब जब गवर्नमेंट फॉर्म करने की बात आ रही है तो क्या देख रहे हैं कि जो दूसरी पार्टी है वो मेजॉरिटी में है, बड़ी पार्टी वो बन के आई है और वो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए पूरा एफर्ट कर रही है। तो अब हम कांग्रेस को छोड़ के हम चले जाएंगे उस पार्टी में, ताकि हम गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाए। तो दिस इज डिफेक्शन, है ना। आप पार्टी जीते हो, आप इलेक्शन जीते हो किसी एक पार्टी के टिकट पे, एंड देन आप उस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में आ रहे हो, है ना, आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, इन ऑर्डर टू देयर इज मोस्टली गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए ये होता है। तो इस तरह का जो डिफेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इससे क्या हुआ
कि कांग्रेस के जो लेजिस्लेटर्स थे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किए इन इंस्टॉलिंग नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन सम ऑफ द स्टेट्स। जैसे कि कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी कांग्रेस के जो लेजिस्लेटर्स जो थे वो कांग्रेस को छोड़ करके दूसरी जो पार्टीज जो कि कोalition में गवर्नमेंट फॉर्म कर रही थी उसके पास चले गए। अपनी पार्टी को छोड़ के जो दूसरी पार्टी के लोग जो मिलकर के कोalition गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं वहाँ चले गए। इस वजह से कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पाई, डिफेक्शन हो गया। क्योंकि मेजोरिटी नहीं मिली थी तो वो जान रहे थे गवर्नमेंट तो फॉर्म नहीं कर पाएगी। अब जो उनके अगेंस्ट जो लोग थे वो सभी एकजुट होते जा रहे थे, तो कुछ विधायक जो कांग्रेस के थे उन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया और उसको ज्वाइन कर लिया। तो इस तरह के जो इंसिडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और इसी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है आयाराम गयाराम। आयाराम गयाराम की कहानी है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से जो इंडियन स्टेट की जो पॉलिटिक्स थी उसमें किस तरह से डिफेक्शन जो हो रहा था वो कितना बड़े स्केल पर हो रहा था, है ना। इसमें क्या हुआ कि एक वो थे एमएलए थे हरियाणा में जिनका नाम था गयालाल। दिस इज इंटरेस्टिंग डिफेक्शन का ही एक ये कहानी है, किस तरह से जो लेजिस्लेटर्स थे वो अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहे थे और ये कितना अनस्टेबल था, कितना अनप्रिंसिपल्ड था, विदाउट एनी प्रिंसिपल, है ना। तो द नेम ऑफ द एमएलए वाज गयालाल एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट हरियाणा। हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। ओके तो हरियाणा में क्या हुआ कि गयालाल ने 1967 के इलेक्शन के बाद 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने 3 बारी पार्टी छोड़ी। कांग्रेस से वो यूनाइटेड फ्रंट में गए पहली बार, फिर यूनाइटेड फ्रंट से वापस कांग्रेस में आ गए, फिर 9 घंटे के अंदर अंदर फिर से बैक वो यूनाइटेड फ्रंट में चले गए। तो ये 3 बारी उन्होंने अपनी पार्टी को बदला विद इन दिस 15 डेज, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ें हम देख रहे हैं, इसी में ये कॉन्सेप्ट आया आयाराम गयाराम, है ना। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी पॉलिटिकल पार्टीज़ की, कांग्रेस की, जब वो उन्होंने डिसीजन लिया था कांग्रेस में आने का, है ना। तो उस समय जो कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और कांग्रेस के जो लीडर थे राव वीरेंद्र सिंह, उन्होंने कांग्रेस इस लीडर को गयालाल को प्रेस के सामने लाते हुए कहा था कि गयाराम वॉज नाउ आयाराम। जो चला गया था, गयालाल चूंकि नाम था इसलिए इसके साथ बहुत सूट किया, गयाराम इज नाउ आयाराम, जो चला गया था वो आ गया है। तो दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ डिफेक्शन। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन यहाँ पर ये देखेंगे कि जो कोalition वाली गवर्नमेंट बनती है वो बहुत ही स्टेबल नहीं हो पाती है। अब इसमें एक नई चीज़ हमें देखना है और वो है कांग्रेस जो है 1967 के बाद कुछ ऐसे इंटरनल प्रॉब्लम्स आते हैं, फैक्शनलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एंड ऑल दिस लेड टू स्प्लिट इन द कांग्रेस में स्प्लिट होता है। उसको ही अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिचुएशन थे, क्या रीजंस थे, इमीडिएट रीज़न क्या था, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। तो कांग्रेस जो है वो सेंटर में तो पावर में था, है ना। सेंटर में कांग्रेस वॉज स्टिल इन पावर, उसको मेजोरिटी भी मिली थी लोकसभा के इलेक्शन में, बट हाँ स्टेट्स में उनकी कंडीशन ख़राब जरूर हो गई थी, बट सेंटर में वो अभी भी पावर में थे। हाँ, नंबर ऑफ एमपीज़ कम हो गए थे पहले से, जितना नंबर ऑफ एमपीज़ पहले के इलेक्शंस में हमने देखा 3/4 सीट्स वो जीतती थी, अब वो उस कंडीशन में, इस इलेक्शन के बाद वो इस कंडीशन में नहीं थी, है ना। और अब ये भी लगने लगा कि अगर यही कंडीशन रहा तो आगे के जो इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें हो सकता है कांग्रेस को मेजॉरिटी भी नहीं मिल पाए, है ना। तो अब ये करना था कि जो कांग्रेस का कोई सब्स्टिट्यूट भी इस समय अवेलेबल नहीं था, क्योंकि जो भी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट स्टेट्स में फॉर्म हुई थी उसमें हमने देख लिया कि किस तरह से आइडियोलॉजिकली जो डिफरेंट ग्रुप्स थे, अपोजिट ग्रुप्स थे, वो सब साथ मिले हुए थे, तो वो बहुत लॉन्ग लिव नहीं थी, चल नहीं पाई, अनस्टेबल थी। तो अब हम ये देखते हैं
कि बहुत सारे स्टेट्स में ऐसा भी हुआ कि गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, कोalition गवर्नमेंट बनी, फिर वो गवर्नमेंट चल नहीं पाई, गवर्नमेंट का सपोर्ट कम हो गया, गवर्नमेंट गिर गई और फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल आ गया। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी कुछ हुई। अब हम कांग्रेस के अंदर की अगर हम देखें तो अंदर ये प्रॉब्लम आ रही थी कि कांग्रेस में जो लीडर थी इंदिरा गांधी, उनको जो रियल चैलेंज आ रहा था दैट वाज नॉट फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि बाहर में तो हमने देख लिया कोalition गवर्नमेंट फॉर्म हुई, बट कोalition गवर्नमेंट का कोई फ्यूचर नहीं था। तो कोई भी अपोजिशन, ऐसा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, अकेली कोई पार्टी कांग्रेस के सामने अभी भी खड़े होने लायक कंडीशन में नहीं थी। तो इंदिरा गांधी को जो इस समय जो चैलेंज मिल रहा था वो बाहर से नहीं मिल रहा था, बल्कि चैलेंज उनके अंदर था, पार्टी के अंदर था, है ना। पार्टी के अंदर एक नया ग्रुप बन चुका था जिसको नाम दिया गया सिंडिकेट। अब हम क्या मीन करते हैं इस सिंडिकेट से? व्हाट डू वी मीन बाय सिंडिकेट? सिंडिकेट का मतलब हो रहा है बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ऑफ कांग्रेस, ठीक है, पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स ऑफ कांग्रेस, पावरफुल and influential leaders of Congress. They were known as syndicate. उनको ही हम सिंडिकेट कहते हैं। अब सिंडिकेट जो है उन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था इंदिरा गांधी को जिताने में, है ना। क्योंकि ये जो सिंडिकेट था, जो ये पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे, उनको लगता था कि इंदिरा गांधी बिल्कुल नौसिखिया हैं, नॉविस हैं, तो उनको वो कंट्रोल करके रखेंगे, है ना। तो इस पर्पज़ से वो बना तो दिए गए थे, लेकिन बना तो दिया था उन्होंने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर, लेकिन यहाँ पर जब आगे जो चीज़ें होने लगती हैं वो ये होती हैं कि उनको ये लगा था कि इंदिरा गांधी को हर चीज़ में उनके एडवाइस की ज़रूरत होगी, उनकी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, और वो इंदिरा गांधी को अपने हिसाब से चलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, है ना। इट डिड नॉट हैपन। So instead of depending on the influential and powerful leaders of Congress, which were known as syndicate, Indira Gandhi she attempted to assert her position within the government as well as within the party, and she chose her trusted group of advisors from outside the party. And what she did actually, that she sidelined the syndicate. Syndicate को उन्होंने sideline करना start कर दिया. We can say that Indira Gandhi was facing two challenges at that time. The first challenge was from the opposition parties, है ना, and the second challenge was from within the party, from the syndicate leaders. We have seen the result of 1967. The result was really alarming for Congress, because though Congress was able to form government at the central level, but its tally of seats reduced drastically, and the percentage of voting was also reduced. In case of states, we find that there were 9 states in which non-Congress government was formed. So this was for the first time that this kind of election results was faced by Congress. So it was really a big challenge. And what was done by Indira Gandhi in order to face this challenge from outside? She converted this power struggle into an ideological struggle. Actually, whenever there is a struggle, it is only power. The power is the only reason for which a struggle is done, है ना। जो भी लड़ाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ पावर के लिए होती है।
और यहाँ भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं, कांग्रेस पार्टी, ये दोनों पावर के लिए ही आपस में लड़ रहे हैं. दे बोथ वांट टू ग्रैब पावर, बट ये इट वाज द डिप्लोमेसी ऑफ Mrs. Gandhi that she converted this struggle for power into the struggle of ideology. इसको उन्होंने ideological struggle में change कर दिया. कैसे? How she did this? She started so many series of initiatives which were left oriented. Left oriented means pro poor strategies. Such strategies which were going to be beneficial for the poorer section of the society. And in this connection we must discuss about her 10-point program, which was adopted by Congress Working Committee on her initiative only, on the initiative of Mrs. Gandhi. This 10-point program was adopted by Congress Working Committee in May 1967, and in this program we find that there were so many measures which were completely communist in nature. Communist, whenever we talk of communist, you must understand we are talking about being pro poor, है ना. हम pro poor हो रहे हैं. जब भी हम communist कहते हैं कि वो communist की बात कर रहे हैं, मतलब वो पुअर पीपल के फेवर में बात हो रही है. तो ये जो 10-point प्रोग्राम था, इसमें बहुत सारे ऐसे मेजर्स थे, लाइक सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक्स का सोशल कंट्रोल होना चाहिए. देयर शुड बी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, then ceiling on income, public distribution of food grains, land reforms, provision of house sites to the rural people. All these were left oriented programs, all these were pro poor programs, and the main purpose of starting this program was to bring in front of the people of the country the communist image, the socialist image of this new Congress, which was under the leadership of Srimati Indira Gandhi. Okay, so syndicate leaders जो थे, they were there, है ना? They were there, and they were not in support of this left wing program, but they had to approve all these left wing programs, but actually they were not liking it. अगर देखा जाए तो वो इन प्रोग्राम्स को, लेफ्ट विंग प्रोग्राम्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे. हालांकि उनको अप्रूव करना पड़ रहा था, क्योंकि ये ऐसे प्रोग्राम्स, अगर प्रो पुअर प्रोग्राम्स को वो नहीं कहेंगे तो फिर जनता के सामने आप क्या जवाब देंगे, है ना? तो ये चीज़ें ऐसी होती हैं. ये सबसे बड़ा जिसको कहा जाता है कि खेल होता है पॉलिटिक्स का, जिसमें कि हम यही दिखाना चाहते हैं, जो पॉलिटिशियन होते हैं, कि हम पुअर के लिए काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली इट इज़ ओनली द स्ट्रगल फॉर पावर, जो कि हमें आगे समझ में आएगा कि किस तरह से इट वॉज ओनली पावर पॉलिटिक्स एंड नथिंग एल्स. इट वॉज ओनली स्ट्रगल फॉर पावर. And now in between comes the election of this president of India. उसी समय 1969 में जो प्रेसिडेंट हमारे थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो जाती है. एंड नाउ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट fell vacant, and then we see that there was to be election for this the post of president, and for that purpose we find that syndicate, the syndicate which was inside the Congress, they managed to nominate this Neelam Sanjeeva Reddy. This is very important to understand, है ना? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, जो इलेक्शन हो रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 का. The candidate was from Congress who was elected. The candidate for this presidential election was Neelam Sanjeeva Reddy. The names are important for you. Now, Neelam Sanjeeva Reddy was actually
at that time he was a speaker of the Lok Sabha, and the most important thing about this N. Sanjeeva Reddy was that he was not having good relationship with Indira Gandhi. We can say that there was controversy, conflicts between these two people, Indira Gandhi, the Prime Minister, and the leader of the Speaker of the Lok Sabha. ठीक है, इन दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, और इसीलिए जानबूझ के इट वॉज डन डेलिबरेटली बाय द सिंडिकेट कि नीलम संजीवा रेड्डी का नाम दिया गया फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, बिकॉज दे वांटेड टू डिस्टर्ब इंदिरा गांधी, कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रहेंगी और नीलम संजीवा रेड्डी प्रेसिडेंट बन जाएंगे, देन द प्रेसिडेंट हैज सम डिस्क्रिशनरी पावर्स, है ना, तो द प्रेसिडेंट विल स्टार्ट यूजिंग हिज डिस्क्रिशनरी पावर एंड इट विल स्टार्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग द वर्क ऑफ इंदिरा गांधी। इसी पर्पज से नीलम संजीवा रेड्डी का नाम दिया गया था। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने बहुत ही जिसको कहा जाए कि बहुत बड़ी डिप्लोमेसी की, जिसको पूरी की पूरी खेल को ही उन्होंने पलट दिया। जो खेल रचा जा रहा था इस तरफ से, सिंडिकेट की तरफ से इंदिरा गांधी को फंसाने का, उस पूरे के पूरे खेल को उन्होंने पलट दिया। कैसे पलट दिया? उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, ठीक है। नाउ नीलम संजीवा रेड्डी, ही वाज द ऑफिशियल कैंडिडेट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइटिंग दिस डाउन, है ना, ही वाज द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। और जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय के, एट प्रेजेंट करंटली जो वाइस प्रेसिडेंट थे, ही वाज वीवी गिरी। Now, what was done by Mrs. Gandhi, that she started supporting VV Giri. She started encouraging VV Giri to file his nomination as an independent candidate. कांग्रेस की तरफ से उनको वो पार्टी ने खड़ा नहीं किया, वीवी गिरी को पार्टी ने खड़ा कर दिया नीलम संजीवा रेड्डी को। तो अब वीवी गिरी कैसे खड़े होंगे? कांग्रेस दो कैंडिडेट तो खड़ी नहीं करेगी। तो इंदिरा गांधी जो कि उसमें प्राइम मिनिस्टर थी, वो इनको एनकरेज कर रही है कि आप प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़िए एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, है ना, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के फॉर्म में भी हम लड़ सकते हैं। तो इस तरह से उनको एनकरेज करके उन्होंने उनका नॉमिनेशन फाइल करवा दिया एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। एंड उसी समय उन्होंने बहुत सारे पॉपुलर पॉलिसी मेजर्स भी अनाउंस किए, लाइक 14 जो बैंक्स थे, लीडिंग प्राइवेट बैंक्स थे, उनका नेशनलाइजेशन होता है, देन प्रीवी पर्स का को ख़त्म करने के भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया। तो इस तरह से चीज़ें जो है एक साथ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। आज हमारा टाइम ओवर हो गया है, हम लोग इसको कल की क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे।